اگر پتھروں کے اندر نفس ہے نا تو پتھر آج بھی سن سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہندو جو مورتی بناتے ہیں that مورتی has a nafs in it because it's made out of پتھر. So that مورتی has a nafs in it. It can listen and it can do something. کیونکہ اللہ کے مطابق پہاڑ اور زمین اور پتھر جواب بھی دیتے ہیں, سنتے بھی ہیں, ایموشنز بھی رکھتے ہیں. So the مورتی has all that power as well. Accept it. کفر بھی شیطان بھائی, یہ کیا کہتے ہیں آپ اس قرآن کی آیت کی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے؟ چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 11. چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 11 کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے کہا کہ ساتھ میں آؤ, خوشی سے چاہے خوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. ہم مانتے ہیں, رضامندی سے آتے ہیں یا خوشی سے آتے ہیں, کچھ بھی کہہ لیں. ہاں ہاں ہم مانتے ہیں بات کو, مانتے ہیں. سر اس میں سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں اور یہ جو زمین ہے اور یہ جو آسمان ہے, آر دے لیونگ بینگز؟ They might not be a living being for us. Do they have soul? No, not necessarily soul itself. So they have feelings. وہ میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ فیلنگز ہیں. then وہ کیسے خوشی سے آ سکتے ہیں؟ خوشی از اے فیلنگ. اور بات بھی کرتے ہیں. دیکھیے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں اس بات کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا, ہاں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا ایک منٹ, میں اس طریقے سے اپنا سوال رکھتا ہوں. ایڈم ایک منٹ, کفر بن شیطان صاحب, ایک میں آپ کو بولنے کا پورا موقع دوں گا. میں آپ کو سوال, آپ کو ایڈم نے ایک طریقے سے سوال کیا, آپ نے اس کا جواب دیا. میں ایک طریقے سے سوال رکھتا ہوں, اس کے بعد آپ ایڈم سے ڈسکس کرنا, مجھ سے کرنا, میں بھی کر سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں, تو آپ کو ایک ارریشنل اور ایک ان لاجیکل انسان بننا پڑے گا. میں ایگری کرتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں بھائی. میں آدم بھائی جانتے ہیں, میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں. میں ادھر ادھر گھما کے بات نہیں کرتا ہوں ساحل صاحب. میں آپ یار 2 وکٹ ایسے ہی گر گئی ہے. ساحل صاحب میرے 2 پوائنٹ ہیں یہاں پہ. پہلی بات, دنیا کا کوئی ریلیجن نہیں ہے جو لاجیکل ہو. فرسٹ پوائنٹ. آپ نے کتنے ریلیجنز کو کمپلیٹلی خود پڑھا؟ مطلب میجر ریلیجن, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو. آپ نے کرسچینٹی کو کمپلیٹلی خود پڑھا؟ لیکن بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی ہیں جس کو لگتا ہے لاجیکل. سر دیکھیں, ہم کمپلیٹلی پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا, قرآن کو ہم کمپلیٹلی نہیں پڑھا میں نے, کمپلیٹلی نہیں پڑھا. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی تھیولوجی کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ ہی نہ کیا ہو. میں مان سکتا ہوں تھیولوجی, لیکن میں کہہ رہا ہوں الوجیکل باتیں ہر مذہب میں ہیں. ایک ہو گیا. دوسری بات ہے, کوئی اور ریلیجن آپ نے کمپلیٹلی پڑھا نہیں؟ Okay, so let's not go to any other religion. Let's stick to this one. پورا تو میں نے اسلام کو بھی نہیں پڑھا ہے, تو میں اسلام پہ بات نہیں کروں. قرآن پورا پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں پڑھا ہے, لیکن پوری تفسیر میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہے. کون سی تفسیر کو مانتے ہیں آپ؟ کون سی تفسیر کو مانتے ہیں؟ اسپیسیفکلی کسی تفسیر کو نہیں مانتا ہوں. اوکے, تو اس کا مطلب گولی مارے تفسیر کو, کیونکہ اس میں آپ اہل چوائس ہے. قرآن کی آیتوں میں تو اہل چوائس نہیں ہے نا, ہر آیت کو مانتے ہیں ہم. ہر آیت کو بلا شبہ مانتا ہوں. اوکے, تو یہ جو آیت ہے یہ بالکل اللاجیکل لگتی ہے کہ اللہ نے زمین سے بات کی ہو, جو کہ آپ کے مطابق نہ تو اس میں سول ہے نہ وہ لیونگ ہے, یٹ وہ فیلنگز کا اظہار کر رہی ہے اور بات کر رہی ہے, کیونکہ فیلنگز اور بات یہ 2 چیزیں سول کے بغیر نہیں ہو سکتی. کریکٹ؟ اچھا اس میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں ایڈم. ہاں ایک منٹ ایڈم, اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہمارے ابو ذر بھائی آئے تھے جن کو لیونگ نان لیونگ کا بھی پتا نہیں تھا, تو وہ کہہ رہے تھے پہاڑ میں بھی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ بات قرآن کے حساب سے تو بالکل صحیح ہے, ایک اور اللاجیکل بات, کیونکہ آپ دیکھیے سورہ حشر ہے شاید, وہ 59 سورہ ہے شاید, جو جن کی آیتیں میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے نماز پڑھاتے وقت. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارا ہوتا تو وہ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ اور ایک اللاجیکل میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں آنسر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ آپ سائنس کے تھرو یہ لاجک لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میرا پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ سائنس اپنی میچورٹی تک نہیں پہنچی ہے. پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے کی اگر بات کریں گے, 50 ایئرز بیک, ناٹ مور دین دیٹ, 50 ایئرز بیک اگر ہم جاتے ہیں تو کوئی یہ ماننے کو راضی نہیں تھا کہ پلانٹس لیونگ بینگز ہیں. کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. سائنس نہیں مانتی. کس نے بولا ہے؟ کوئی بات نہیں. 50 سال پہلے نہیں مانتی تھی, اب ماننے لگی ہے. 50 سال پہلے کی جو سائنس تھی وہ نہیں مانتی تھی. کیا پلانٹس کے پاس سول ہوتی ہے؟ پلانٹس کی تو لینگویج بھی ہوتی ہے, وہ روتے بھی ہیں, تو یہ تو ظاہر ہے بھی ہوگی. نہیں, ایک ہوتی ہے سول, ایک ہوتی ہے اسپرٹ. قرآن کے اندر 2 لفظ آتے ہیں عربی کے, اگر دیکھیں گے نفس اور روح. قرآن میں نفس ہے یا روح ہے؟ پلانٹس میں نفس ہے کہ روح ہے؟ یہ میرے لیے ٹپیکل سوال ہے, میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا. یہی تو پرابلم ہے سر, the devil is in the detail. The devil is in the detail. پرابلم یہی ہے میری جان. ٹھیک ہے, وہ میں پڑھ لوں گا. اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں, پہلے یہی بھی آتے ہیں پلانٹس کو ہم چھوڑ دیں. ایک آرگیومنٹ بنانے دیجیے, ایک جواب آرگیومنٹ بنا لیں.
आर्गुमेंट नहीं, एक जवाब है मेरा, वो ये है कि हम दो वी नो के अर्थ इज अ नॉन लिविंग थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है, सन भी एक नॉन लिविंग थिंग है इन इटसेल्फ, ठीक है, लेकिन जब हम मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, और इसको हमारे हिंदू भाई भी काफी कोट करते हैं कि सन की एक अपनी एक साउंड है और अर्थ की भी एक अपनी एक साउंड है जो एमिट करती है अर्थ, ठीक है, एंड स्पेस की भी अपनी एक साउंड है जो स्पेस एमिट करता है, मून की भी अपनी तो हर प्लैनेट की और स्पेस की अपनी अपनी एक साउंड है। नाउ ये साउंड कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट एज ऑफ नाउ। देयर इज एक्सप्लेनेशन, सेम आर्टिकल में पढ़े क्यों आ रही है, सेम आर्टिकल में पढ़े क्यों आ रही है, बिकॉज़ ऑफ द मूवमेंट आ रही है, सेम आर्टिकल पढ़े आपको लगेगा। तो मैं इसको काउंटर कर देता हूं, मैं इसको एक साइंटिफिक फैक्ट काउंटर कर देता हूं। हम जानते हैं कि वैक्यूम में साउंड कैन ट्रैवल। भाई मेरी बात तो सुनो, पंखा भी चलता है तो उसमें से भी आवाज आती है मेरे भाई, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये कि वैक्यूम में साउंड नहीं चल सकती, इसका ये मतलब नहीं है। As per science, sound requires a medium. वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। Exactly, तो स्पेस में साउंड नहीं है लेकिन ना, मैं क्या करूं इसमें, साइंस कह रही है। मैं बताया था कि साउंड, देयर इज नो साउंड इन द स्पेस, आपको हर आर्टिकल बताएगा। एनीहाउ, हम आगे चलते हैं अपनी इस मुद्दे के ऊपर। आपको पता है कि कुरान आपको जाहिल कहता है मुसलमानों को? हाँ मालूम है, कहता है। जालिम भी कहता है, नादान भी कहता है, जाहिल भी कहता है। क्यों कहता है कुरान आपको जाहिल और नादान क्यों कहता है? क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि हमने 12 अमानत जब पेश करी जमीनों और आसमान और पहाड़ों पर, तो उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया। Exactly. और इंसान जाहिल था, उसने उठाने के लिए वो उठाने के लिए, यानी कि इंसान इतना जाहिल है, और ये मुसलमानों की बात हो रही है इस वक्त, ये नॉन मुस्लिमों की, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, एथियस्ट की, एग्नोस्टिक की बात नहीं हो रही, जिन्होंने कुरान को उठाया उसकी बात हो रही है। भाई हमने तो छोड़ दिया ना, हमने कहा बड़े पांडे में, हमने तो पीछे 12 अमानत नहीं, 12 अमानत ये आलम अरवा की बात चल रही है। हाँ ना, लेकिन आदम अरवा को हम मानते ही नहीं ना, तो हम कैसे मानेंगे? यानी जब हम आप नहीं अरवा को नहीं मानते, मानते, लेकिन जो मुसलमान है उसको बताते खुद कुरान कह रहा है कि तुम लोग जाहिल हो, क्योंकि अल्लाह मियां ने पहाड़ों को कहा, ए पहाड़ कुरान का बोझ उठाते हो? कुरान का नहीं उठाते, बड़ो पांडे में। अल्लाह ने जमीन को कहा, जमीन उठाते हो कुरान का बोझ? ठीक है, इस्लाम का बोझ उठाते हो? मैं कहा नहीं उठाते जी, बड़ो पांडे में। अल्लाह मियां ने आसमानों को कहा, 7 आसमान नया अल्लाह मियां ने, तो प्लूरल में आसमान है, अल्लाह ने 7 आसमानों को कहा कुरान का बोझ उठाते हो? कहा नहीं उठाते, बड़ो पांडे में। जो आपके अल्लाह मियां के इंसान थे, उन्होंने कहा अल्लाह मियां हमें दे दे, हमें रह लो, अल्लाह हमें दे दे, हम उठाएंगे ये बोझ। अल्लाह मियां हम डोंकीज हैं, हमें दे दे। अल्लाह ने इंसानों को दे दिया। अल्लाह मियां इंसानों को क्या कह रहा है कि इंसान इंतहाई बहुत बड़ा जालिम है और जाहिल है। भाई ये क्या अल्लाह मियां किससे बातें कर रहा है? अल्लाह मियां साइकोपैथ लग रहा है यार यहाँ पे। पहले आसमान को कहता है, जमीन को कहता है आदम भाई, अगर आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे भाई, मजबूरन मुझे जाना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी वजह यह है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है अगर अल्लाह की आयतों का मजाक बना रहे हो और तुम उस महफिल में शामिल रहोगे तो मुंह में गिने जाओगे। तो अगर आप आई एम सॉरी कि आपको ऐसा फील हुआ है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आई एम सॉरी फॉर दैट कि अगर आपको ऐसा फील हुआ, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। लेकिन सर अगर आप लेट्स नॉट फील इस्लाम के अंदर से, इसको इस आयत को इस्लाम के बाहर से जाके देखें। वही चीज है। हुर्मत को, कुरान की हुर्मत को साइड पे रखे ना, जरा बाहर से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हुर्मत कुरान और हुर्मत अल्लाह को साइड पे रख दे, और फिर इस आयत को पढ़ के देखें क्या आपको मेरी वाली स्टेटमेंट सच्ची लग रही है कि नहीं। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा अल्लाह ताला जाहिल क्यों कह रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला वहां पे कह रहा है हम 12 अमानत हमने पेश करी कि कौन है जो टेस्ट देने के लिए तैयार है, टेस्ट, ठीक है। इंसानों ने कहा कि हम देंगे। अब अल्लाह ताला ने इसीलिए जन्नत जहन्नम बनाई कि इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट है। अगर इसकी मैं पिछली आयत खोलूं, 12 अमानत 12 अमानत तो टेस्ट हुआ ना भाई। अमानत संभालना उठाना ये तो टेस्ट हुआ ना। क्या आप उस अमानत को संभाल पा रहे हैं कि उसके साथ आप वो कर जाएंगे, मतलब अमानत की खयानत कर जाएंगे? ये तो ये टेस्ट है कि आप अमानत उठाने के लायक हैं कि नहीं है, आप तो उठा पाएंगे या उसको खयानत कर देंगे उस अमानत में। तो फिर आसमान जमीन और पहाड़ काफिर हुए इस हिसाब से? काफिर नहीं है ना, उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे ये टेस्ट, उन्होंने ये इनकार कर दिया ना, तो दे बिकेम काफिर। अगर मैं अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार कर दूं तो आई एम अ काफिर, राइट? अच्छा एक मिनट, अल्लाह ताला ने चॉइस दी थी, हुक्म नहीं दिया था। अगर हुक्म देता तो मानना पड़ता उनको। चॉइस दी थी, इंसानों ने कहा कि हम ठीक है हम उठाएंगे इसको। पहाड़ों ने मना कर दिया, अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया था ना, हुक्म देता तो काफिर हो जाते। लेट मी कॉम्प्रिहेंड दिस सिचुएशन। जी, तो अल्लाह मियां ने शुरू में हुक्म नहीं दिया, ऑप्शन दी, ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या कुरान मेरे बाप के गुनाह को मेरे ऊपर डाल सकता है? क्या कुरान आपके अब्बा के गुनाह को आप पर डाल सकता है? मैं गुनाह मेरे अब्बा ने किया, ठीक है, लेकिन उसकी सजा मैं भुगतूं, क्या ऐसा होता है? कुरान के मुताबिक मेरे बाप के गुनाह मेरे ऊपर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ओके, आलम अरवा में आदम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। Why is Allah making me a kafir? मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया। सारे इंसानों ने एक्सेप्ट किया, कहीं पर ये बात नहीं कि आदम ने एक्सेप्ट किया।
show me from the Quran کہ آدم کے ساتھ ساری روحیں پیدا کر دی گئی تھی. قرآن سے دکھائیے گا, کہیں اور نہ جائیے گا. یہی آیت گواہ ہے. میں نے یہی بولا ہے, یہ آیت گواہ ہے. یہی آیت گواہ ہے. جی جی انسان نے اٹھا لیا, اللہ تعالیٰ نے کہا آدم نے اٹھا لیا, اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں نے. جی میرے بھائی اس وقت انسان ہی بنا تھا. انسان دی مین, جو دی مین ہے, ال کا جب بھی لگے گا وہ دی ہے. دی سب سے پہلا انسان آدم بنا تھا. دی مین واز آدم. دا لفظ آدم جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے انسان. آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے. دا ورڈ آدم translates into man, right? The man, جب آپ کہیں گے نا ال انسان, it means Adam, not the ruler of the whole mankind. ٹھیک ہے. اب ال انسان نے اس کو ایکسپٹ کیا, آدم نے ایکسپٹ کیا. Why the hell am I responsible جو آدم نے ایکسپٹ کیا؟ میرے پاس چوائس ہے, میں مانوں یا نہ مانوں. Why am I کافر؟ چلیے اس کے لیے ایک کام ہی کرتے ہیں, ہمارے اس میں آپ کے بیچ میں کانٹرڈکشن ہے, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں سارے انسانوں نے کہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں آدم نے کہا تھا. نہیں قرآن کہہ رہا ہے, سوری قرآن کہہ رہا ہے ال انسان, قرآن کہہ رہا ہے. تو ٹھیک ہے صاحب, اس کے لیے سارے جو مترجم ہے قرآن کے, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آدم کو بول رہا ہے یا سارے ہی انسان کو. The man undertook it. اور پھر انسان نے اسے اٹھایا. Every single translation. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر, میں آپ کی حجت نہیں, انسان کلیکٹیولی نا آدم صاحب. ارے میں آپ کی حجت تمام کرتا ہوں. انسان کلیکٹیولی نہیں ہے, ال انسان ہے, دی انسان ہے, دی مین ہے. میں آپ کی حجت تمام کرتا ہوں. آپ کے اسکالرز اس سوری پھر میں اسٹوپڈ بولوں گا, پھر آپ کو اچھا لگے گا. اس کیا کہنا چاہیے, اس سلی آرگیومنٹ کو لے کے انہیں لگتا ہے کہ یار گیم خراب ہو گئی. وہ کہتے ہیں عالم ارواح کی تمام روح نے. علامہ قرآن میں ال انسان لکھنے کے بجائے پرولر میں کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ کہ علامہ کو آپ سے زیادہ عربی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پہلے مجھے یہ سمجھا دیں, علامہ کو آپ سے زیادہ عربی آتی ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل آتی ہے. علامہ کو آپ سے زیادہ عربی آتی ہے, تو علامہ اس آیت کو, کیا علامہ قرآن میں اس آیت کو عربی میں اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کلیئر ہو جاتی؟ کر سکتا تھا. تو پھر علامہ نے سنگولر یوز کیا ہے, ہم لوگ سنگولر کیوں نہیں لے رہے؟ اچھا سنیے جی سر, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں انسان بڑا ظالم, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو آرگیومنٹ کر رہے تھے نا, جو آپ نے کوسچن رکھتے ٹائم کیا تھا, جب بات اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی کر دی, انسان جاہل ہے, تب آپ نے مراد سارے مسلمانوں کو لے لیا. اب جب آپ کے مطلب میں نے آدم ہی لیا. یہ دیکھیں میں آپ کو تفسیر ابن کثیر دکھاتا ہوں. ان کا جو پہلا آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے جو میرا حضرت ابن عباس کا بیان ہے. حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایمانت سے یہاں مراد اطاعت ہے, اور اسے حضرت آدم پہ پیش کرنے سے پہلے زمین و آسمان اور پہاڑوں پہ پیش کیا گیا تھا. حضرت آدم پہ پیش کرنے سے پہلے. سو بیسیکلی میرا سوال وہیں پہ آ گیا, میرے یہ جو قرآن کو اٹھانا ہے اس کی ذمہ داری تو آدم نے لی, ٹھیک ہے, ذمہ داری لی آدم نے. بھائی میں کیوں کافر ہوں؟ میں نہیں لیتا ذمہ داری, میں کیوں کافر ہوں؟ میں تو لی نہیں. آپ جو عالم اربا کی بات کر رہے ہیں وہ نیچے لکھی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے, لیکن دیر آر دا کنسنسس, سرٹن کنسنسس ہے, سرٹن ہے جو کہ میری اس تھیوری کو ایکسپٹ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ال انسان کا ہے. اللہ نے چونکہ ال انسان کا ہے, ملٹیپل لوگ ال انسان کو آدم سے ہی بیان کرتے ہیں, کیونکہ ال کا مطلب ہوتا ہے دی ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے ال عربک کا, جو کہ سنگولر کو ظاہر کرتا ہے. دی انسان واز آدم. تو حضرت ابن عباس جو ہیں, جو کہ حرب الامہ ہیں, قلم ہے امت کے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ آدم کو پریزنٹ کیا. آدم کو گناہ میرے پہ کیوں, میں کافر ہوں کیوں میرے پہ؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اس کا دوسرا جواب بھی دے دیتا ہوں. قرآن میں ہی ایک اور دوسری آیت ہے, ٹھیک ہے, صرف یہی آیت نہیں ہے. عالم ارواح کی سنی تو صحیح, عالم ارواح نہیں, تو وہ آیت اس آیت کو کلیئر کر دیتی ہے نا. جواب دے دو, مجھے بولنے تو دیں آیت, تبھی تو پتہ لگے گا. سورت نمبر آیت نمبر یاد نہیں ہے, مفہوم یاد ہے, وہ میں سرچ کرنا پڑے گا, پھر میں سرچ کر کے آپ کو دیتا ہوں. وہ آیت کا ایک سیکنڈ. اوکے ساحل بھائی, آپ سپر چیٹ لے لیں, ہم پاز لیتے ہیں. ساحل بھائی, میں نے کہا تھا یہ بھائی بڑے زبردست بھائی ہیں, کیونکہ ان کو حجت آتی ہے, انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے. بہت زبردست سر, آپ سپر چیٹ لے لیں, بہت زبردست. کوئی اور ہے تو ان سے گپ شپ لگا لیں, میرا ریفرنس لے کے آتے ہیں. سیکنگ آنسرز کرے, اللہ اوپر بیٹھ کے ایکس مسلمز کو کچھ ایسا بول رہے ہوں گے, کچھ نہیں بولے گا تو چپ, ابے تو مرتد ہے, چپ جاہل, مرتد ہے تو کچھ نہیں بول سکتا. لیکن قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کیف یہدی اللہ, کیسے اللہ گائیڈ کرے ان کو جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑ دیا. تو اللہ تو مجبور کہتا ہے میں مجبور ہوں, میں ان کو گائیڈ کر ہی نہیں سکتا, یہ لوگ اسلام لینے مرتد ہو چکے ہیں. اللہ بھی مجبور ہے قرآن کے اندر. جے ہو انڈیا بھائی نے, بالکل جے ہو انڈیا بھائی نے $50 کا کنٹریبیوشن کیا ہے, بہت بہت شکریہ جے بھائی آپ کا. رسول کافر کہہ رہے ہیں پہاڑ کیسے گڑے گئے تھے, لیٹسٹ ملا جی. حق سے آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب.
राघव शर्मा कह रहे भाई स्पेस पे साउंड नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी की बेस पर साउंड जनरेट की गई है, फुल आर्टिकल में है ये डिटेल्स। जी राघव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदम साहब जी सर, आपने आयत ढूंढ ली? सूरह आराफ आयत नंबर 172। सूरह आराफ, उसका नंबर में ढूंढना पड़ेगा। सूरह आराफ 7 है, ओके। 7 की आयत नंबर 172 172। 172, क्या बात है सर, आप कितने अच्छे हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग। 7 की 172, एक सेकंड। ओके, समथिंग वेंट गुड। जी सर। और याद करो, जब निकाला गया, आपके रब ने तमाम बनी आदम की पीठों से इनकी नस्ल को और इनको गवाह बनाया खुद इनके ऊपर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम पर गवाह हैं। मबादा तुम ये कहो कि क़यामत के दिन तो हम इससे गाफिल हैं। जी सर। जी सर बोलिए। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने रूहों को आदम की पीठ से निकाला था, सारी रूहों को, फिर उसके बाद उनसे इकरार लिया था कि गवाही दो, क्या क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा था हाँ हम आप रब हैं। फिर उसके बाद उनको यहाँ पे भेजा गया। जी सर, इसके लिए कुरान कहता है कि हमने सबको जो है ना एक ही फितरत पे पैदा किया। ये आयत फितरत वाली आयत है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन कवेनेंट भी तो लिया ना पहले, कवेनेंट भी तो लिया ना। सर जवाब तो सुन ले। आप मुद्दे से हट रहे हैं इस वक्त। ये फितरत वाली आयत है सर सुन। बोलिए। नहीं बोल रहे हैं। अच्छा सुने, रुके इब्ने कसीर ही खोलते हैं फितरत। आप मेरी ना सुने, रुक जा यार, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, तफसीर के साथ पढ़ा हुआ है। एक सेकंड, ये फितरत की बात कर रहा है, लेकिन मैं इब्ने कसीर खोलते हैं दोबारा सर। हर रूह को अल्लाह ताला अपना खालिक मानता है। औलादे आदम से अल्लाह ने इनकी नस्ल से, इनकी पीठों से ज़ौले अव्वल में निकाली, फिर इनसे इस बात का इकरार किया रब खालिक मालिक मबूद है। इसी फितरत पर फिर दुनिया में इन सबको पैदा किया। ये वो फितरत जिसकी तब्दीली नामुमकिन है। मुस्लिम और बुखारी में लिखा हुआ है हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। सर देखिए, मैंने आपको यही बात बताई थी, यहाँ पे कुरान उठाने की बात नहीं है, यहाँ पे इमानत की बात नहीं है। ये वाली आयत जो है वो फितरत के ऊपर है कि हर इंसान ये बात जानता है कि देयर इज अ गॉड, कोई है। फितरतन वो मानता है कि कोई है तखलीक करने वाला। सर यहाँ पे ये आयत उस कुरान को उठाने की नहीं है, उस इमानत, कुरान वाली इमानत की नहीं है। यहाँ पे आयत सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि फितरत में इंसान जानता है कि दुनिया खुद ब खुद क्रिएट नहीं हुई। देयर वाज अ क्रिएटर। मेरा पॉइंट ये है आदम साहब, आप ठीक कह रहे हैं बात। मैं सिर्फ आपको ये साबित करना चाह रहा था कि आलम अरवाह में सारी रूहों को एक बार निकाला गया था। नहीं चलो निकाला गया था, लेकिन बात ये नहीं है। कुरान 33:72, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें डबल चॉइसेस हैं आपके पास। हम वापस चलते हैं 78, हम इसके 33:72 पे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि इसी में अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लूं तो आपको ये भी नजर आ जाएगा कि अरवाह की रूहें थी। लेकिन अल्लाह मियां वाज एक्सप्लिसिट कि मैंने ये चीज दी है अल इंसान को, जो कि आदम है, दी इंसान। मेरा सवाल वेरी क्लियर था आपसे, क्या अल्लाह मियां उसी तरीके से जो आप मुझे आयत दे रहे हैं, उसी तरीके से तमाम इंसान नहीं कह सकता था? बनी आदम नहीं कह सकता था? उसने अल इंसान को लिखा। So basically, it is either a contradiction or Allah did not know what he was saying. Now my question is कि आदम से अरवाह निकालने से पहले आदम को कुरान उठवाया था या बाद में तमाम रूह को? देखिए, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आदम को उठवाया था। मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं तफसीर सामने दिखा रहा हूँ। इब्ने अब्बास जो हरबुल उम्मा है, हरबुल उम्मा का मतलब क्या होता है? हरबुल उम्मा का मतलब क्या होता है? इब्ने अब्बास हुज्जत नहीं है ना भाई, उन्होंने उनके कई कौल गलत दिए हैं। हरबुल उम्मा किसे कहते हैं सर जी? हरबुल उम्मा किसे कहते हैं? वॉरियर ऑफ द वॉर ऑफ हर्ब, तो बेसिकली वॉर हो गया ना। नहीं, हरबुल उम्मा होते चले वॉरियर्स ऑफ इस्लाम, यानी कि जिनसे इस्लाम को सीखना है आपने। ठीक है, ओके। अब आपके पास जो इब्ने अब्बास जी हैं और इब्ने कतीर उसको लेके सबसे पहले उन्हीं का कौल दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन सिंपल ये है, जब कुरान उठाने की बात आई, इमानत देने की बात आई, वो बात जब आई थी तो वो आदम में से रूहें निकालने से पहले हुई थी या आदम से रूहें निकालने के बाद हुई थी? क्योंकि अभी आपने देखा कि आदम से रूहें निकाली गई थी, राइट? और उनको फितरत में पैदा किया गया था। लेकिन इसका मतलब है कि देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी, क्योंकि कुरान कह रहा है अल इंसान, इसका मतलब है कि देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि कुरान उठाया गया था आदम से, उसके बाद रूहें निकाली गई। मान लिया, चलिए फिर आगे, अगर आदम भी मैंने मान लिया तो आगे आर्गुमेंट क्या आपका? आगे आर्गुमेंट में क्या? फिर आपने कहा था कि पहाड़ वगैरह काफिर नहीं है, आसमान काफिर नहीं है, उस वक्त चॉइस दी गई थी। हाँ बिल्कुल। तो अब मेरा सवाल है कि जब वो ऑप्शन दिया गया था उस वक्त तो मैं था नहीं। अब मेरे बाप ने, जिसका नाम आदम है, हर किसी का बाप है, हुजूर की हदीस में है कि आदम सबका बाप है, आपका भी मेरा भी, हम सबका बाप आदम है, राइट? तो मेरे बाप ने गुनाह किया, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, मेरे बाप ने एक चीज की एक्सेप्टेंस दी है, उसका खुमियाजा मैं क्यों भुगतूं भाई? मुझे, मेरे पास चॉइस, वेयर इज माय चॉइस? मेरी चॉइस कहां है? आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूं आपकी चॉइस नहीं है, ठीक है। अगर मैं मेरी चॉइस ही नहीं है। हाँ, आपकी नहीं है ना? नहीं है मेरी चॉइस। अरे आपके वालिद ने तो चॉइस करी ना, तो बाउंड है इस बात। नहीं ना साहब, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। वालिद साहब ने चॉइस की तो मतलब मैं भी उसको मानना पड़ेगा। आदम साहब, आपके वालिद ने चूज किया कि वो पाकिस्तान मूव करेंगे पार्टीशन के बाद।
اس میں آپ کی چوائس کہاں ہے؟ آپ اپنی مرضی سے پاکستانی بنے ہیں کیا؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں نہیں کہ دور فٹے منہ کے میں پاکستان میں پیدا ہوا. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں فٹے منہ. تو سر میرے جھیلنا پاس پڑتا لیکن سر میرے پاس یہ چوائس ہے نا کہ میں پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دوں. ہاں چھوڑ سکتا ہے, وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ چھوڑ سکتا ہے نا دوسری کنٹری میں. اور میرا گناہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ میں پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دوں. محمد نے بھی تو مکہ کی نیشنلٹی چھوڑی تھی نا, مدینہ میں جا کے اپنی ریاست قائم کی تھی, پھر واپس مکہ میں کیپچر کیا تھا. دیر از اے فیئر پاسبلٹی کہ ایک وقت آئے کہ میں پاکستان پہ قبضہ کر لوں اور اس کو انڈیا کا پارٹ بنا دوں. پاسبلٹی ہے, بالکل ہے, ان دا پاسبل فیوچر یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی چوائس کی وجہ سے اللہ نے مجھے چوائس نہیں دی, مجھے کافر بنا دیا. حد ہو گئی یار, یہ کیا بغیرتی ہے. سوری آپ کو کافر تو نہیں بنا دیا, آپ کو مسلمان پیدا کیا تھا آپ بائی چوائس. اچھا میں ایگزامپل میں ایک بات بتاتا ہوں. کل نا اسی بات پہ ایک دوسرے چینل پہ بات ہو رہی تھی. میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر دیر از این ایڈوانٹیج فار مسلم فار بینگ بورن ان اے مسلم فیملی, ٹھیک ہے, تو ساحل صاحب کو بھی مسلمان ہونے چاہیے آج کی ڈیٹ میں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایڈوانٹیج ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ایڈوانٹیج نہیں ہے. آپ لوگ کا پوائنٹ ایک ایڈوانٹیج ہے. Being born in a Muslim family, how is that an advantage? It's not an advantage. It's a bad luck. Exactly. میرا پوائنٹ یہی ہے کہ بھائی مسلمان گھر میں پیدا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندگی پر مسلمان رہیں گے یا ایمان پر رہیں گے. ایڈوانٹیج میں اس سینس میں بول رہا تھا کہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کافر پیدا کر دیا اس کی غلطی کیا ہے؟ کیا غلطی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو مسلمان پیدا کیا نا, اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہا ہے دین فطرت میں پیدا کیا میں نے. وہ بائی چوائس بنتا ہے جو بھی اس کو بننا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوپا تو نہیں اس کے اوپر. ایک سیکنڈ, واپس آتے ہیں. دین فطرت پہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کس نے بتایا کہ دین فطرت پہ پیدا کیا؟ اللہ نے بتایا. اللہ نے بتایا. کہاں پہ بتایا کہ دین فطرت پہ پیدا کیا؟ قرآن میں. اوکے, کیا دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ نے ان کو دین فطرت پہ پیدا کیا لیکن وہ دین فطرت نہیں ہے. کین یو شو می دی دین فطرت اور کین یو اونلی شو می فطرت؟ فطرت, چلیے فطرت ٹھیک, پرفیکٹ. تو دین دیں گے, لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ میں نے تمہارے لیے چن لیا کیونکہ دین اسلام ہے, اللہ نے چنا تمہارے لیے. اوکے, اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا. فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ there is a God. There is a God. ہاں ایگزیکٹلی, that's فطرت. پرفیکٹ. اسلام از ناٹ فطرت. یہ بعد میں تفسیروں میں ایڈ کیا گیا, رائٹ. اسلام دین فطرت ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں. یہ تفسیروں میں ایڈ کیا گیا نا, قرآن میں تو نہیں. قرآن کا ترجمہ ہے دین فطرت. قرآن میں بھی میں آپ سے لرن کر لوں, شاید میں بھول گیا ہوں. there is a fair possibility. دین فطرت دکھانا ہے آپ نے مجھے کہ اسلام دین فطرت ہے, یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے قرآن سے. میں اقرار کروں گا اگر میں بھول گیا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. there is a fair possibility یار, بندہ کبھی بھول جاتا ہے, not a problem. اسلام ہے دین فطرت. اسلام دین فطرت ہے, قرآن سے دکھانا ہے آپ نے. اچھا سوری, میں کنفیوزڈ ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن فی نفسی حق ہے. یہ وہ الگ آیا, ڈیفرنٹ ہو گیا. فی نفسی حق. کمنگ بیک ٹو دی سیم پوائنٹ ناؤ. اب ہمارے پاس دو مدعے آ گئے جی. قرآن نے پہاڑوں نے قرآن لینے سے انکار کر دیا. somehow پہاڑوں کے پاس بولنے کی طاقت بھی ہے, somehow پہاڑوں کے پاس ایموشنز بھی ہیں, بیکاز وداؤٹ ایموشنز آپ اقرار اور انکار نہیں کرتے. نمبر تیسری بات, پہاڑ اور آسمانوں کے پاس ایموشنز کے علاوہ فیصلہ لینے کی طاقت بھی ہے. they can make decisions. So in reality یہ سب کچھ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پہاڑوں کے پاس اور آسمانوں کے پاس نفس نہ ہو. کریکٹ. without the nafs you cannot have any of this. correct. because اللہ کا پاس بھی نفس ہے, you know that. you don't know that. does Allah has nafs or not? اللہ تعالیٰ کے پاس نفس ہے کہ نہیں پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم. نہیں سر دیکھیں, وداؤٹ نفس آپ کچھ نہیں کر سکتے. there is no یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ وداؤٹ نفس ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ پہلے اللہ ہے اللہ ہے نفس. میں آپ کو دکھاتا ہوں, عربی میں دکھاتا ہوں کہ ٹرانسلیشن میں کہیں بھی نفس نہیں ملے گا آپ کو. عیسیٰ اللہ سے بول رہا ہے, ٹھیک ہے, فیوچر میں بولے گا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا. ٹھیک ہے, اللہ کا نفس ہو گیا. ٹھیک ہے, وداؤٹ نفس آپ کوئی ڈیسیژن پاور نہیں لے سکتے. اللہ ہے نفس. ٹھیک ہے, قرآن گواہ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, اب مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیں جہاں پہ آسمانوں, پہاڑ, زمین کو نفس ہو, پلیز. تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے نفس ان کے پاس. اگر مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا قرآن میں, اگر اللہ تعالیٰ مان لیجیے نہیں کہا کہ ہم نے ان کو نفس دے رکھی ہے, مان لیجیے نہیں کہا, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے پاس نفس نہیں ہے. ساحل بھائی سن رہے ہیں آپ یہ جواب؟
अरे सुन रहा हर हूँ चीज का जवाब देना जरूरी है कि पत्थर सर के ये जरिए कह रहे नब्ज है, हैं पहाड़ मेरे का कि नबी नब्ज है। सर अगर पत्थरों के अंदर नफ्स है ना तो पत्थर आज भी सुन सकते हैं। इसका मतलब है हिंदू जो मूर्ति बनाते हैं दैट मूर्ति हैज अ नफ्स इन इट बिकॉज इट्स मेड आउट ऑफ पत्थर। So that मूर्ति has a nafs in it, it can listen and it can do something। क्योंकि अल्लाह के मुताबिक पहाड़ और जमीन और पत्थर जवाब भी देते हैं, सुनते भी हैं, इमोशंस भी रखते हैं। ठीक है, So the मूर्ति has all that power as well, accept it। तो इट कैन नॉट बी क्रिएटर इन इटसेल्फ, नो, ये भी तो पॉइंट है। How? अल्लाह अरे कुरान में कहता है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कहता है हाँ कहता है हर कुल्लू चीज पानी नफ्सिन है, जायकातुल मौत। बिल्कुल। अल्लाह का अपना भी नफ्स है। अल्लाह आदम ने का कहा जवाब अल्लाह मैं ने दे कहा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा इल्ला नफ्सुल्लाह नहीं कहा, लिहाजा अल्लाह के नफ्स को भी मौत आनी है, नहीं आनी है। नहीं आनी है। कुरान इज क्लियर, मुझे दिखा दे जहां पे कुरान तो कहे इल्ला नफ्सुल्लाह के मैं एक्सेप्ट अल्लाह का नफ्स। कुरान कहता नहीं है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, अल्लाह हैज हिज नफ्स, अल्लाह के मैं नफ्स को जवाब भी दे मौत दूं, आनी है। जी सर, जवाब दे दे रहा हूँ। जी सर, इसका जवाब कुरान नहीं है जी सर। कि अल्लाह ताला वो कहेगा कि एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट फॉर हिज फेस। एग्जैक्टली, फेस नॉट नफ्स, नॉट नफ्स, फेस, हिज फेस, उसके चेहरे के अलावा सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह की टांगें भी खत्म हो जाएगी, अल्लाह नहीं के नहीं हाथ भी नहीं, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह का पेड़ भी खत्म हो जाएगा, अल्लाह की उंगलियां भी खत्म हो जाएंगी। आप उसको ऐसा ले रहे हैं ना, फेस से मतलब हम मुराद लेते हैं जात, उसकी जात के अलावा सब कुछ नहीं खत्म नहीं हो नहीं नहीं, फेस फेस से इज फेस, फेस से जात बोल रहे फेस इज फेस। हर चीज में आप लिटरल सेंस नहीं ले सकते ना भाई, मुसलमानों यार के कम ऑन perspective यार, से यार सोचेंगे। कम ऑन। सो अल्लाह के हाथ है कि नहीं है? साहिल भाई देखिए गेम हो गई, ये गेम हो गई सर, जलेबी हो गई साहिल भाई। नहीं जलेबी नहीं खत्म। आदम भाई, हम तो शुरू से मानते हैं कि भाई जितने भी मुफस्सिर हैं उन्होंने ये लिखा है कि फेस का मतलब ये नहीं खाली फेस बचा रहेगा, पूरा जो भी कुछ अल्लाह के पास वो सब गायब हो जाएगा, किसी ने भी नहीं लिखा है। मुफस्सिर मानते हैं ना, अल्लाह ने तो नहीं बताया ना भाई। हाँ, ये अल्लाह तो आधी नबी तो अधूरी बातें क्यों चलिए बताता है? ठीक है, तो ऐसी हदीस भी तो मिलनी चाहिए कि अल्लाह ताला का सिर्फ चेहरा बचेगा, बाकी तो फना हो जाएगा। सर कुरान अरे कह तो रहा खुद है। अल्लाह कह रहा है अल्लाह कह रहा अल्लाह है ताला बस ने ना ये भाई। कहा कि मेरे बाय फेस ही मींस हिज ग्लोरियस फेस एंड हिज आइडेंटिटी, मतलब जो किधर भी लिखा है भाई पर्सनालिटी है। फेस? आई मीन सुनो सुनो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लाम के साथ ये है कि आपको अल्लाह ने माजूर रखा है। आप कह रहे हैं कि भाई फेस अल्लाह मीन्स ये आपको कैसा पता चला कि अल्लाह मीन्स दिस एंड नॉट द वन दैट वी आर टेलिंग? एग्जैक्टली मैं देयर बता हैज रहा टू हूँ बी आप एविडेंस। हाँ इसका सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर मैं अपने स्क्रिप्चर की बात कर रहा हूँ तो माना आप बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ना कि वो जो इस्लाम छोड़ चुका है, और ना कि आप ना वो ना जो ना 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 आप हाँ, कैसे बोल पहली सकते हैं दलील बिना तो ये है, रेफरेंस पे? नहीं नहीं, पहली आप दलील एक बिल्कुल तो बोल मिनट ये है सकते हैं, रेफरेंस के साथ बोल एक सकते मिनट एक मिनट इसका मैं जवाब देता हूँ देखो अपने जी क्या नाम है इनका, कुफ्र बिस शैतान साहब। आप देखिए जी कि एक मुसलमानों का ग्रोह है वो ये मानता है कि जहां पे अल्लाह वज की बात करे या यद की बात करे, हाथों की बात करे, उससे हाथ मुराद नहीं है, उससे चेहरा मुराद नहीं है, बल्कि उससे हाथ से मुराद अल्लाह की पावर है। ठीक है, नहीं नहीं गलत, वो गलत एक बोल रहा गिरोह ये है, वो गलत सुन बोल रहा है। भाई तो अल्लाह नहीं नहीं सुन लो फेड मेरी सर, बात तो कंप्लीट यही होने पे दो। रहो सर, यही पे रहो, सही कह रहे हो। हाँ तो इसका मतलब है कि आप वो वाले ग्रोह से हैं जो मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, लेकिन कैसे हैं एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं, आप उस ग्रोह के बिल्कुल बिलोंग उसके सही, लिए करते रेफरेंस बिल्कुल लगेगा, सही, उसके लिए बिल्कुल सही। रेफरेंस लगेगा। आप ये नहीं बोल सकते चूंकि हम मुसलमान हैं तो हम जो बोले वो सही, चलिए मैं क्योंकि उसके रेफरेंस मुसलमान भी ये दे कह देता रहा हूँ, है। मैं उसके रेफरेंस भी दे देता हूँ, मैं उसका क्या रेफरेंस क्या क्या उसका रेफरेंस रेफरेंस दे रहा ये है? है, हाँ दे रहा हूँ। चेहरे से मुराद नहीं पूरा एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, उसका रेफरेंस ये है, हाथों के मुतालिक जो बात चल रही है कि हाँ यहूदी कहते थे कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, तो हम्म, अल्लाह ताला जवाब देता नहीं, उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, यानी अल्लाह ताला बोल रहा है उसके पास दो हाँ हाथ है, ठीक है। हाँ तो ठीक जो है। लोग बोल रहे हैं मेटाफोरिकल है या उसके हाथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो ताकत की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे तो दो वही हाथों तो के मैं कह रहा नंबर हूँ। के साथ जिक्र कर दिया, नंबर के साथ अरे तो कि दोनों भाई हाथ मैं खुले हैं। आपके साथ ही हूँ। अरे भाई मैं आपके साथ ही हूँ। आपने भी जी आर्गुमेंट ये पेश किया था कि आप इस्लाम छोड़ चुके हैं तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि जो इस्लाम में है, जो हाँ मानता है इस्लाम को, उसकी बात मानी एग्जैक्टली, जाएगी। बिल्कुल सही। मैंने उस पे आपको ये काउंटर आर्गुमेंट दिया था कि सिर्फ इस्लाम में होने से आपकी बात सही हो जाती, वैसा नहीं है। वरना नहीं जो हाँ ये कहे कि ठीक दो हाथ, ठीक अरे यार ठीक, खत्म तो होने सही दो। सही सही कह रहे हैं, हाँ वरना बोलिए। जो जो ये कह रहा है कि नहीं उससे हाथ मुराद है वो भी सही, क्योंकि वो भी मुसलमान है, और जो ये कह रहा है कि नहीं उससे हाथ मुराद नहीं है बल्कि पावर मुराद है, वो भी सही, क्योंकि दोनों मुसलमान है। तो आर्गुमेंट ऐसे हाँ नहीं होते भाई। अगर हाँ आप ये कह रहे हो कि अल्लाह जहां कह रहा है चेहरा से बचेगा, ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं वो चेहरा नहीं बल्कि पूरा अल्लाह उससे मुराद है, तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मैं कह रहा हूं तो मानना पड़ेगा। उसकी आपको दलील देनी पड़ेगी कि कहाँ अल्लाह कह रहा है कि यहाँ पे चेहरे से मुराद मैं पूरा बीइंग हूँ, वो जात है पूरी अल्लाह की जात ठीक है, ये मैं है। ढूंढ के आपके पास इंशाल्लाह कोई बता दलील? दूंगा, मैं ढूंढ के बता दूंगा, मुझे हदीसों में देखना पड़ेगा, कुरान में शायद नहीं मिलेगा फॉर श्योर, तो आपका आर्ग्यूमेंट लेकिन गलत था ना ये वाला कि हम मुसलमान हैं तो हमारी बात मानी जाएगी। नहीं देखिए भाई, आर्गुमेंट मेरा ये था कि सारे मुफस्सिर ये कहते हैं चेहरे से मुराद, सारे ही मुफस्सिर उसकी जात से लेते हैं, कोई भी चेहरा अल्लाह मतलब नहीं कहता ना, सिर्फ चेहरे। दलील चाहिए ना। मैं वही ठीक कह है, रहा हूँ मैं कि अल्लाह ने मैं आपको माजूर इंशाल्लाह रखा मैं है। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह हदीस से दलील दूंगा सर आपको, आप अल लेकिन मुझे बहकी सिर्फ को मानते हैं? सर आप बहकी को मानते हैं?
बहकी बहक जाएंगे ये बहकी की बात सुन के। उनकी बात नहीं, उनकी बात सही होगी तो बिल्कुल मानूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। मैं तो बहक जाएंगे। हाँ नहीं तो बहक जाएंगे। अल-बाकी जो है अर्ली मुफस्सिरीन में से आप ये मानते हैं? हाँ है। बहुत अर्ली, इतने अर्ली के तिबरी हाँ, से बहुत भी early। तकरीबन अर्ली बनता है, तिबरी के बिल्कुल पास ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अल-बहकी इस आयत की ट्रांसलेशन में कहते हैं, तफसीर में कहते हैं, उनका नाम अल-बहकी है, बहकी नहीं है, बहकी है। बहकी यार, बहकी भी नहीं है भाई, बहकी नहीं है, बहकी है। हाँ बहकी। Forget आप भी गलत है। pronunciation. Why do you guys pick up the pronunciation? I'm just so amazed. ये छोटे मोटी चीज में क्यों पकड़ते हो यार, आप भी फंस जाते हो उसमें। हाँ ठीक मुद्दे को छोड़ के कहीं और चले जाते हो यार, हद हो गई। अरे सॉरी बोलिए। अल-बहकी फरमाते हैं कि कुल्लु शैइन हालिका इल्ला वजहा के बारे में फरमाते हैं कि हर चीज हलाक होने वाली है मगर वो नेक अमाल जिनके साथ इसकी जात का इरादा है वो बच जाएंगे। तो अल्लाह के सिर्फ नेक अमाल बच जाएंगे, वो तो यहाँ तक बोलते हैं। तो अगर आप कंट्राडिक्शन में जाते हैं कि अल्लाह ने इतनी ज्यादा कंट्राडिक्टरी आयत दी है और इतनी ज्यादा क्या कहते हैं उसको, माजूर रखा है यार, इनको माजूर रखा है, ज़ईफ टाइप की वर्ड यूज किए हैं कि किसी को पता ही नहीं लग रहा क्या है। ठीक है, तो क्या चेहरा है, क्या पूरा अल्लाह है, क्या सिर्फ उसकी नेक अमाल है, क्या है? उसकी पूरी नेक अमल नहीं, उसकी जो पर्सनालिटी है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे शख्सियत है, पूरी शख्सियत है ना, पूरी शख्सियत। हाँ वो जो शख्सियत जो है, ये पूरी शख्सियत पता कौन कह रहा है? इब्ने अब्बास कह रहे हैं, जिसको अभी आप रिजेक्ट कर रहे थे इब्ने कसीर में, जब इब्ने अब्बास दिखाया आपको कि आदम ने कुरान अपने ऊपर एक्सेप्टेंस दिया, जिसको आप रिजेक्ट कर रहे थे वो कह रहा है पूरी शख्सियत। तो इब्ने अब्बास जिसको अभी आपने रिजेक्ट किया वो पूरी शख्सियत कह रहा है। इब्ने हातिम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, वो कुछ हो रहा है। वो इब्ने हातिम कह रहे हैं कुल्ली शई हालिका इल्ला वजहा के बारे में हर चीज हलाक होने वाली है मगर जिसके साथ इसकी जात का इरादा कर दिया जाए वो नहीं। अच्छा, इब्ने हातिम मुजाहिद से कुछ और कह रहे हैं, अल-बहकी कुछ और कह रहे हैं, इब्ने अब्बास कुछ और कह रहे हैं। एवरीवन इज सेइंग समथिंग डिफरेंट। क्यों? क्योंकि अल्लाह वाज नॉट क्लियर इन हिज आयत। व्हाई डू यू इवन एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ गॉड? ये मुतशाबे में आ गया ना। मुतशाबे यार, ये भी पहले भाई से बात कर रहे थे आप कुरान नहीं, मैंने आप लोग की वो आर्गुमेंट सुना था मुतशाबे वाला। आप लोग स्पेसिफिक नंबर ऑफ पूछ रहे थे कौन सी आयत मुतशाबे है, कहाँ लिखा है। कुरान चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह मियां फरमाता है कि मैंने हर आयत को कुरान की क्लियरली एक्सप्लेन किया है। आयातुहु कुरानन अरबियन लिकौमिही यअलमून। अल्लाह कहता है मैंने क्लियरली बयान किया। आपने झोल मार दिया। मैंने झोल मार दिया, मैं आप समझ ले, ये ले मेरी नहीं सुनिए, झोल आपने क्या मार दिया, मैं बता रहा हूँ ना झोल आपने क्या मार दिया। किताबुन फुसिलत कुल्लु आयतुहु अगर होता तो मतलब होता कि सारी आयत। अच्छा, यहाँ कुरान से क्या मुराद है? किताब कुरान आ गया सुनिए, किताब है जिसमें आयतें डिटेल्ड हैं, ठीक है। कहीं ये नहीं लिखा कि सारी आयतें डिटेल्ड है, पहली बात तो ये। अरे यार यार, अच्छा आप लोग बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं दे दूं यहाँ पे, मैं कुल्लू भी दे देता हूँ। एक सेकंड यार, कुल्लू वाली आयत भी दे देता हूं। 1037 है मेरे ख्याल में, 1037 ये ले पकड़। तस्दीक लज़ी बैन यदी व तफसील किताब ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन। ओके होल्ड ऑन, इसमें भी कुल नहीं है, एक और में कुल है, किसी एक में कुल है। 12/111 में जाते हैं, उसमें कुल होगा। ये ले, वलकिन तस्दीक लज़ी बैन यदैहि व तफसीलन कुल्ली शैइन, हर चीज जो कुरान ने बताई है उसको तफसीलन बताया है। कुल्ली शैइन, ले कुल्ली भी आ गया सर, आप क्या करें, ले कुल्ली हो गया, कुल्ली ऐड कर दिया सर। हाँ ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए, तर्जुमा क्या है, अरबी डायरेक्ट नहीं आती ना। हाँ पढ़े सर। इसमें लिखा है कि यकीनन इनके वाकयात में होशमंद लोगों के लिए इबरत है। अच्छा, वाकयात में जो अल्लाह वाकया बयान कर रहा है जमीन और आसमान को बनाने का और उनको कॉल करने का और उनको कहने का कि भाईजान तूने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, उनके हम आ जाते हैं एक्सेप्टेंस। तो ये वाकया है जो अल्लाह ने बयान किया। साबिका अक़वाम भी तो लिखा है साथ में। कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट में साबिका अक़वाम। हेलो ब्रदर, साबिका अक़वाम डॉक्टर इसरार अहमद ने ब्रैकेट में लिखा है, अरबी में नहीं है। हेलो रॉकेट साइंस। अच्छा, इसको अगर ये साबिका अक़वाम भी ले रहे हो तो ये जो इसकी जो बातें हो रही है आसमान और जमीन की, तो ये प्रेजेंट वाली बात तो नहीं हो रही ना, ये भी तो साबिका ही बात है। अरे कौमों की बात हो रही है यहाँ पे। अक़वाम का मतलब क्या है? कौम की जमा। ठीक है, कौम की जमा अक़वाम। ठीक है, साहिल वेट यार, साहिल वेट। लक़द काना फी क़िस्सासिहिम, ओल्ड स्टोरीज, जो पास्ट में स्टोरीज बयान की, अगर अल्लाह ये पास्ट की स्टोरी बयान कर रहा है भाई। किसकी स्टोरी? इंसानों की नहीं, हर चीज की। आओ मेरे पास आओ, ठीक है। आप आगे पढ़ ले, ब्रैकेटों को बगैर पढ़े। अरे क्यों ब्रैकेट के बगैर पढ़ूं मैं? ये तो बताइए। वो अल्लाह का नहीं है, अल्लाह का नहीं है, वो अल्लाह का नहीं है। देखो ये बहुत चालाकी आप लोगों की। या तो आप ये माने, सुनो मेरी बात सुनो, या तो आप ये माने, सुनो ना कुफ्र बिश शैतान साहब, या तो आप ये माने कि ये ब्रैकेट के बिना कुरान अधूरा है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं उसको ब्रैकेट के बिना तर्जुमा अधूरा।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साहिल साहब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल बहुत बेसिक एग्जांपल। अरबी में वो लफ्ज बता दे, अरबी में लफ्ज बता दे, अगर तर्जुमा अधूरा है ब्रैकेट के बिना तो अरबी में लफ्ज बता दे। साहिल साहब इसका मैं एक एग्जांपल से मैं इसको साबित कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है। सर एक सेकंड, ये वाली ट्रांसलेशन पढ़े, मौलाना वदुदी खान की ट्रांसलेशन पढ़े प्लीज, ये सही ट्रांसलेशन बगैर ब्रैकेट हो गया, पढ़े। इन किस्सों में समझदार लोगों के लिए बड़ी इबरत है, ये कोई घड़ी हुई बात नहीं बल्कि तस्दीक है, ठीक है। इस चीज की जो इससे पहले मौजूद है और तफसीर है, हर चीज की और हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे इनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं है, रुक जाइए। कोई बात नहीं, आपको समझ इस तरह से अभी नहीं आएगी क्योंकि ये कुरान की नहीं, ट्रांसलेशन वाकई में नहीं आई, मुझे वाकई में नहीं आई, मुझे दोबारा पढ़ने दीजिए। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। अल्लाह कह रहा है जो किस्से मैंने कुरान के अंदर तुम्हें बताए हैं, इन किस्सों में, ठीक है, आप इसका कॉन्टेक्स्ट किनके होते हैं, किससे किनके होते हैं, कौमों के होते हैं? अल्लाह ने दिए किस्से यार, जमीन आसमान को बनाने का किस्सा अल्लाह ने दिया है भाई, अल्लाह ने जमीन आसमान को बनाने का किस्सा दिया, मैंने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया। आप उसको किस्सा क्यों बोल रहे हैं? किस्सा मैं लोगों से जोड़ रहा हूँ, आप यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं। वो क्या है? किस्सा नहीं है तो क्या है? वो एक अल्लाह ताला अपना एक अमर बयान कर रहा है, किस्सा नहीं है वो। तो वो किस्सा ही है ना, कहानी है जो हमें मिल रही है। ओहो अमर है भाई, अमर और किस्सों में फर्क है। अरे यार अमर यार भाई, अल्लाह भी बयान कर रहा है किस्सा कि उसने दुनिया कैसे बनाई। It's him telling us how मैं कह रहा हूं अल्लाह ताला ने अपना अमर बयान किया, मैंने दुनिया कैसे बनाई, किस्सा क्यों बोल रहा है उसको? तो किस्सा ही है ना, इट्स अ नहीं भाई अमर है। अरे आदम भाई, अरे अमर क्या होता है? अमर ही रब्बी होता है। अल्लाह कहता है कुन फयकून, दैट्स अमरी रब्बी। प्लीज डू नॉट गो देयर यार। आपको पता है मेरे बारे में, आपको पता है मेरे बारे में सर, मैंने भी ये रटी हुई है कुरान की आयतें, ऐसी बात नहीं है। अमरी रब्बी होती है कुन फयकून, अल्लाह मियां कहे वो हो जाए, उसमें किसी की रिजेक्शन या चॉइस नहीं होती। प्लीज डोंट से दैट। अच्छा एडम 10 मिनट में ये रैप अप करो इनके साथ, क्योंकि काफी वक्त हमने इनको दिया है। बाकी मोमिन भाई भी जुड़े हैं, हो सकता है आज के टॉपिक पे वो कुछ बोले। और आपने जो बताया और जो पहले वाली आयत आपने बताई थी, उससे भी बिल्कुल इस आयत की पहली बात तो जरूरत है भी नहीं। वहां पे जब कुरान की बात हो रही है तो पूरा कुरान ही लिया जाएगा। उसकी वजह बताता हूं मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ठीक है। आप एक किताब लिखते हैं, ठीक है, आप किताब के बारे में ये कहते हैं कि ये किताब मैंने एकदम डिटेल में लिखी है, ठीक है। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं जब यहाँ पे किताब कह रहा हूं तो इससे सिर्फ बाज हिस्से यानी मुराद है, बाकी किताब नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। बहुत वो अच्छा सवाल। जलेबी बनाएंगे, कोई जलेबी नहीं बनाऊंगा, कोई जलेबी नहीं बनाऊंगा। हाँ बोलो। मैं ठीक है, बना अगर सिर्फ ये आयत होती तो मैं बिल्कुल बेशक मैं पूरी किताब ले लेता, ठीक है, लेना भी चाहिए पूरी किताब लेनी चाहिए। लेकिन इसको डिटेल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरी आयत नाज़िल करी कि इसकी बाद आयतें मुहकम है और बाद मुतशाबिहात में से हैं, आप मुतशाबिहात के पीछे मत पड़िए। उसको डिटेल बोलना नहीं चाहिए। नहीं एडम, उसको फिर डिटेल बोलना ही नहीं चाहिए। अरे यार बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आई फुली एग्री विद यू 110%। लेकिन भाई एक और जलेबी बनाएंगे, तो लेट मी फिक्स दिस जलेबी। मैंने जलेबी बनाता ही नहीं, आदम में जलेबी नहीं बनाता यार। कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, आई एक्सेप्ट यू। आप प्रेट्सल बनाते हैं, आप अंग्रेजी वाले प्रेट्सल बनाते हैं, जलेबी नहीं बनाते। सर जी लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, कैन यू टेल मी कौन सी आयत पहले आई, कौन सी बाद में आई है? कौन सी आयत पहले, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक ना, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं वो अंधी बात नहीं मार सकता, मैं चेक करके कोई बात नहीं, चेक करके आइएगा नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊंगा। साहिल साहब आप प्लीज मेरी वो आईडी ब्लॉक कर दीजिए, अनब्लॉक कर दीजिए, कुफर भी निकाल दिया। सर आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है सर। कहा सुना माफ, मेरी गलती कोताहियों को माफ कीजिएगा, क्योंकि आप बड़े अच्छे भाई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी दिन लॉजिकली सोचेंगे। इंशाल्लाह मैं आऊंगा जरूर दोबारा आपके पास, बेशक। इंशाल्लाह आप लोग को मुसलमान बनाऊंगा। चलिए सर, आपका ये मोटिव है, मैं आपका मोटिव एक्सेप्ट करता हूँ और आपका चैलेंज भी एक्सेप्ट करता हूँ। मोटिव है, चैलेंज है, जो भी है आई एक्सेप्टेड। और मेरी ख्वाहिश है भाई, मेरा कोई मोटिव मेरा कोई चैलेंज नहीं है, मेरी सिर्फ ख्वाहिश है। ओके, मैं चाहता हूं बफजले खुदा बफजले जिंदगी, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि आप जल्द से जल्द लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर दें और इस कुमन के एरिया से बाहर आ जाएं। सर मेरी ये ख्वाहिश है, आपकी वो ख्वाहिश है, लेट्स सी किसकी ख्वाहिश पूरी होती है। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा